Hello students. Today start lecture number 12 and welcome to SKLGD online education. So today I will discuss about IMG tag. So I will discuss in IMG tag how to insert image in HTML document. So we will discuss first topic, what is a IMG tag? What is a IMG tag? IMG tag. What is a IMG tags? Okay. So HTML image are indeed needed or required for any website. Image help a website become more attractive from visitors. ओके क्योंकि इमेज का जो यूज करते हैं हम अपनी वेबसाइट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए करते हैं. ठीक. द इमेज टैग डिफाइंस द इमेज टैग डिफाइंस ए image in an HTML document. We can say that is IMG tag used in a insert an images in HTML document. Insert image in an HTML document. Okay, this is a first thing. अगर हम इमेज टैग का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि इमेज टैग का यूज जो है इमेज को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है. ओके. देन सेकंड पॉइंट इज द इमेज टैग इज एन एम्प्टी टैग. द इमेज टैग is an empty and incline element. Why empty tag? Empty tag means it can only open, not close. It can only open, not close. This is called a empty tag, and it is also known as a incline element tag. Incline element tag. Okay, I am talking about incline image. Incline image means image display in line with the text. Image display in line with the text. हमने देखा होगा कि एक अगर हमारे पास इमेज है तो उससे पहले टेक्स्ट का यूज किया जाता है और उसके बाद भी अगर कोई टेक्स्ट हमें लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसके लिए हम इनक्लाइन का यूज इनलाइन का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? इनलाइन. ठीक है ना, इनलाइन का यूज करेंगे. तो इनलाइन इमेज मींस इमेज डिस्प्ले इनलाइन विद द टेक्स्ट. ओके. देन सम एक्सटेंशन आर यूज्ड इन द इमेज टैग फॉर द URL address. First is PNG. PNG. It is an extension. So its full form is Portable Network Graphics. Portable Network Graphics. Okay. Portable Network Graphics. PNG. PNG is an extension. Then next is XBM. This is an extension. X-bit map. X-bit map. Okay. Then next is XPM. Okay. XPM known as XPM is also known as XPix map. XPix map. Okay. Then GIF. Already you know that and very well. What is a GIF? Graphical interchange format. Graphical interchange format. You can see GIF because the GIF is 5-6 second animated pic. Okay, animated pic. They can change
and randomly motion. ठीक, they can change and random motion. Next is a very important JPEG. JPEG is the extension of image tag, joint photographic graphic expert graphics expert graphics. Okay, this is a extension of image tag. One question ask them. Second topic is start. What is the difference between GIF and JPG? So that I am talking about the difference between GIF and JPG. GIF 256 colors are provided. JPG unlimited colors. Okay, जो GIF होता है उसमें 256 कलर्स ही हम यूज कर सकते हैं, जबकि JPG में हम अनलिमिटेड कलर्स यूज कर सकते हैं. GIF not good for compressing photographs. Excellent for compressing photographs and complex images. Okay. GIF compressed with low quality. GIF compressed with low quality. JPG compressed high quality. And GIF extension is .gif. JPG extension is .jpg, .jpeg या .jpe. This extension are required for the image tag. Okay, then we can say image tag insert image in an HTML document, empty and inline element tag. Then this extension are used in there, so that browser can display image files in your document if they are in either GIF, JPG format. Okay, many browser supports image stored in JPEG format. Already all browsers are supported JPEG extension. Okay, to display the inline image. How to display inline image? So that we are going to take some examples. HTML head title, head close, body. AV de Villiers is a very good cricketer. Then IMG SRC. IMG SRC used for SRC. SRC used for source. This is a source. It's find the image of URL of image. Okay. We can then take a picture. So that one picture is this. We can open with Internet Explorer. So take a URL address. This is a URL address. Okay, PNG, JPG, sorry, JPG. This URL address copy. Then this URL address is paste. Okay, IMG tag is an empty tag. IMG tag is an empty tag. Okay. Then we write he played South African cricket team. South African cricket team. South African cricket team. So he played South African cricket team. Okay. Then body is closed. Then HTML is closed. Okay. Then this file is a save as any one name. This file save name for once.html. Okay, once.html file is saved. Then we
can see its web browser's output display. View of output display we can see, so that once file it is a processing, it is in processing. Okay, या अभी प्रोसेसिंग में चल रही है, देखते हैं क्या होता है. दिस फाइल इज शो. ओके, इमेज इनलाइन टेस्ट. ठीक है ना. जब हमने बात की थी इनलाइन इमेज की, तो ये क्या है, हमारा हमारा इनलाइन इमेज है. इनलाइन इमेज मींस इमेज डिस्प्ले इनलाइन विद द टेस्ट. जो इमेज टेक्स्ट के साथ डिस्प्ले होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन इमेज कहते हैं. ओके, then we consider the HTML tag for inline image. It is required SRC. SRC is the source attribute, is the URL of GIF JPG image you want to insert in the document. SRC का यूज क्यों कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट को कैसे हम URL एड्रेस द्वारा इंसर्ट कर सके. फर्स्ट attribute is SRC. It is also known as source. Okay, source, it gives the URL address of image, URL address of image. Okay, ये जो है हमें URL एड्रेस की इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, its value is the image files URL and we can say source attribute specify the URL of an image, or and we can consider a URL address. है ना, कैसे हमने URL एड्रेस को लिया था. तो URL एड्रेस को हमने क्या किया था, ये जो सोर्स दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा क्या है, URL एड्रेस है JPG तक. ठीक है ना. और इसको हमने कैसे लिया, पहले इमेज को ओपन किया. इमेज ओपन करने के बाद ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे URL एड्रेस आता था, वहां से उसको कॉपी किया. कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया. ओके, देन सेकंड एट्रीब्यूट इज ALT. Second attribute is ALT. What is a ALT? ALT attribute specify the alternate text for an image. Alternate text for image. ठीक. The ALT attribute specifies alternative text the browser may show if image display is not possible or disabled by the user. It is an option. It is an option. Okay, graphical browser show the ALT attribute text upon moving mouse pointer on it if the image is available and download is enabled by the users. So we can say it is used for alternative text. Alternative text for image. Okay, alternative text for image. Then this is a coding for IMG. SRC is equal to URL address of image, URL address of image. Then ALT, we can type a ALT with some text. Okay, any text. Suppose that this is my pic. Okay, this is my pic. Then this. Okay, तो हम क्या करते हैं, जब ALT का यूज करते हैं तो सबसे पहले ये जो IMG SRC ये URL एड्रेस दिया हुआ है, और ALT अल्टरनेट जो टेस्ट लिया हुआ है, दिस इज माई पिक. तो मैंने क्या किया, ALT कहाँ पे शो होगा, जब हम उस पिक पे क्लिक करेंगे, उस पिक पे क्लिक करेंगे, तो पिक पे जैसे ही जाएंगे अपने माउस के पॉइंटर को मूव करते हैं, तो ये जो अल्टरनेट टेस्ट है हमें डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देता है, और उसके थोड़ी देर बाद वो ही जो टेस्ट है वो रिमूव हो जाता है. कैसे, देखिए. सबसे पहले मैंने ये जो पिक थी ये यूज की थी. एवी डिविलियर्स इज अ वेरी गुड क्रिकेटर. देन मैंने क्या किया, यहाँ पे BR लगा दिया. अब BR टैग का यूज किया. ठीक, BR टैग का यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे भी BR टैग यूज कर दिया. BR टैग. ओके, जब मैंने यहाँ BR टैग यूज किया, अब मैंने यहाँ क्या किया, ALT का यूज किया. ALT इज इक्वल टू दिस, या दिस पिक इज AV
D Villiers. Okay, this pic is AVD Villiers. Okay, then this file is saved. Save. We can say. Okay, then जैसे ही मेरा माउस यहाँ पे आया, देखो, sorry, he played South African cricket team. AV de Villiers is a very good cricketer. 1 minute. Okay. Balance. Open with. ये अभी प्रोसेसिंग में है, हम क्रोम पे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई फाइल ऐसी होती है जो इस माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन नहीं होती है, वो गूगल क्रोम पे भी ओपन हो जाती हैं। कुछ डिस्प्ले इसमें आउटपुट व्यू में दिखाई नहीं देते। ओके, सो दैट वी कैन not display so alternate test. Okay, don't display so alternate test, so that we can remove this tags. Okay, remove this tag, backspace, then file save. Not so alternate display test, it is a option. Okay, मैंने पहले ही बताया था, द ALT attribute specify alternative test. The browser may show if image display is not possible or disabled by the user. It is an option. ठीक, अब हम अदर इमेज यूज करके देखते हैं। ठीक है ना, मैंने क्या किया, अदर इमेज ली, img src is equal to, then we can second image open with Internet Explorer. This is a copy. Okay, image copy, URL address, then we use ALT is equal to AVD Villiers, then this, close this. Okay, then file is save. अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इस तरह की फाइल आ रही है। कभी कभी क्या होता है, ये इमेज भी शो नहीं होती। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये इमेज शो नहीं हो रही, इसलिए ये करके बताया कि जब हमने सेकंड इमेज ली तो हो सकता है मे बी ये शो ना हो। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, BR का यूज किया, BR टैग का, देन फाइल फिर से सेव की। कभी कभार क्या है, जो ब्राउजर्स होते हैं वो शो नहीं करते। देखो अब यहाँ पे आ गई, तो ये इमेज क्या है, इस तरह का एक टूल किट बन के आ जाएगी, टूल टिप बन के आ जाता है, इसको टूल टिप कहते हैं हम। ठीक है, टूल टिप कहते हैं। इस तरह से हमें ये दिखाई देती है और हमें अल्टरनेट टेस्ट या इमेज वगैरह हैं वो शो नहीं होती जब हम कर्सर वगैरह इसका यूज करते हैं। अब हम इसी इमेज को अब हमने इसी इमेज को क्या किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन किया। ठीक है, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रोसेसिंग,
अब यहाँ पे भी देखो हमारा क्रॉस बना हुआ आ रहा है, तो ये इमेज क्या है, या जो ब्राउजर है उसमें शो नहीं हो पा रही, जिसके कारण ये हमें दिखाई नहीं दे रही। ओके, ये ब्राउजर्स में शो नहीं हो रही है। और इस पे भी हमने देखा था, जैसे अब इस पे देखते हैं, क्या यहाँ भी शो नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अब हमें इमेज दिखाई नहीं दे रही। ओके, देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज, तो द वैल्यू ऑफ द द वैल्यू ऑफ ALT एट्रीब्यूट्स इज ए टेस्ट स्ट्रिंग। जो ALT एट्रीब्यूट्स होता है वो एक टेस्ट स्ट्रिंग होता है ना, अप टू 1024 करेक्टर स्ट्रिंग, 1024 करेक्टर्स जो टेस्ट होते हैं इसमें यूज किए जाते हैं। करेक्टर्स स्ट्रिंग ऑफ टेस्ट जो हैं यूज किए जाते हैं। ठीक, करेक्टर्स के जितने भी टेस्ट हैं वो इसमें यूज किए जाएंगे। ओके, कोटेशन मार्क हो गया, स्पेस हो गए, पंचुएशंस हो गए, इन सभी का यूज हम ALT एट्रीब्यूट्स में करते हैं। ठीक, ALT एट्रीब्यूट्स के बाद अब आता है थर्ड इज टाइटल। थर्ड इज टाइटल। ओके, थर्ड इज टाइटल एट्रीब्यूट। सो टाइटल एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं? इन ब्राउजर अदर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर यू कैन यूज टाइटल एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग टू डिस्प्ले टूल टिप टेस्ट। जो टूल टिप टेस्ट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ओके, जो अभी हमने इमेज में ये शो किया था, एक सिंबल्स आ रहा था क्रॉस का लगा हुआ। ठीक है, क्या होता है कि जो इमेज है हमारी ब्राउजर पे लोड नहीं हो पाती, तो ये क्रॉस जो हमें सिंबल दिखाई दे रहा है वो हमें शो होने लगता है। लेकिन जो टाइटल एट्रीब्यूट है उसका यूज कहाँ करते हैं? जहां पे हमें इमेज टैग को डिस्प्ले करना है टूल टिप टेस्ट के रूप में, तो वहां पे हम इस टाइटल का यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज अलाइन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज अलाइन एट्रीब्यूट। ओके, अब अलाइन एट्रीब्यूट जो होता है हमारा, जब हम अलाइन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो अलाइन एट्रीब्यूट यहाँ पे 5 टाइप से बताया गया। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन एंड बॉटम। ओके, इमेज को हम लेफ्ट में भी ले सकते हैं, राइट में भी ले सकते हैं, टॉप पे भी ले सकते हैं, लेफ्ट और बॉटम में भी ले सकते हैं। कैसे? देखो, suppose that align attribute specify the alignment of an image according to the surrounding elements। जैसे मुझे 5 पिक्स लेनी है, सपोज दैट मुझे 5 पिक्स लेनी है, जरूरी नहीं है वो AV डिविलियर्स से रिलेटेड हो। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसमें ये जो पिक थी इसको मैंने राइट में कर दिया, इमेज SRC, देन अलाइन इज इक्वल टू राइट, RIGHT। ओके, अलाइन क्या हुआ, मेरा राइट हुआ। देन फाइल को मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद मैंने इसका आउटपुट चेक किया। देखो, ये पिक हमें कहाँ शो हो रही है, राइट में हो रही है। ठीक, ऐसे ही अदर पिक ले सकते हैं हम। इसी पिक को और लेते हैं, URL एड्रेस यहीं से कॉपी करने में आसानी भी रहेगी। IMG SRC इज इक्वल टू दिस, copy then paste। okay, Control B। okay, then align is equal to लेफ्ट या मिडिल है ना, मिडिल। से ठीक, तो इस तरह से हम अलाइन से इमेज को शो कर सकते हैं। कैसे अलाइन का यूज करते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम
और इनमें, ठीक। अलाइन एट्रीब्यूट जो है स्पेसिफाइज करता है अलाइनमेंट, इमेज के अलाइनमेंट को अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एलिमेंट्स, ठीक। द HTML स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज 5 इमेज अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स वैल्यू लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम एंड मिडिल, ओके। सो दैट नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टाइटल के बाद जो हम यूज कर सकते हैं बॉर्डर, ठीक। बॉर्डर हमेशा पिक्सल में लिए जाते हैं, जैसे 1 2 4 5 इस तरह से लिए जाएंगे। और स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ बॉर्डर अराउंड द इमेज, जो इमेज होती है उसके अराउंड का जो बॉर्डर होता है उसको स्पेसिफाइज करने के लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, ओके। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने बॉर्डर यूज किया, बॉर्डर इज इक्वल टू 5, okay, then my file is say ओके ये बॉर्डर आ गया, ब्लैक कलर का ये दिखाई दे रहा है, तो ये बॉर्डर आ गया। तो इस तरह से हम बॉर्डर एट्रीब्यूट्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जरूरी नहीं है ये मोबाइल्स में यूज हो पाए, ठीक है ना। मोबाइल्स की कोडिंग में जरूरी नहीं है ये अपने आउटपुट शो ही करे, ओके। देन हाइट, हाइट भी हमें वैल्यू पिक्सल्स में देता है, पिक्सल में देगा। और इसका भी यूज जो है इमेज की हाइट को स्पेसिफाई करना होता है। कैसे यूज करते हैं देखो हाइट को, है ना। जैसे मैंने सपोज दैट यहाँ पे हाइट वैल्यू दे दी HEIGHT, हाइट दे दिया मैंने 75, ठीक। विड्थ भी दे रहे, विड्थ भी अनदर एट्रीब्यूट्स होता है इसका। विड्थ मैंने दे दी 100, ओके। विड्थ एंड हाइट एक साथ यूज कर रहे हैं, तो विड्थ और हाइट भी हमारे क्या है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। तो विड्थ और हाइट मैंने दिए, फाइल को सेव किया, ठीक। उसके बाद ये देखो ये दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट भी चेंज हो गई और विड्थ भी इमेज की चेंज हो गई। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो हाइट और विड्थ भी इमेज टैग के क्या है एट्रीब्यूट्स हैं। एक और एट्रीब्यूट्स होता है इसके अलावा बी स्पेस, ठीक। इसमें भी हम बी स्पेस में भी हम पिक्सल वैल्यू का यूज करते हैं, वैल्यूज का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो यूज किया जाता है व्हाइट स्पेस जो टॉप से और बॉटम ऑफ आ इमेज मिलती है उसके लिए हम बी स्पेस का यूज करते हैं, वैल्यू दे देते हैं। जैसे इसमें यूज कर सकते हैं सपोज दैट बी स्पेस इज इक्वल टू मैंने 10 ले लिया, सपोज दैट बी स्पेस इज 10, ओके। फाइल सेव, देन देखो कैसे चेंज होगी, ये चेंज हो गई। यहाँ टॉप से कितना इसमें स्पेस आया, तो ये सारे स्पेस इसमें हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है एच स्पेस एट्रीब्यूट्स, ओके। इसमें भी हमें एच स्पेस का यूज भी हम वैल्यू देके ही करते हैं, पिक्सली में यूज करते हैं। और ये जो स्पेसिफाइज करता है ये वाइट स्पेस ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ इमेज, जो लेफ्ट और राइट इमेज होती हैं उनमें इसका हम यूज करते हैं। जैसे अभी हमने राइट में ये इमेज ली, यहाँ पे हम एच स्पेस का यूज करते हैं। एच स्पेस इज इक्वल टू हमने ले लिया जैसे 70, वैल्यू हमने ज्यादा ले ली, यहाँ पे क्या किया एच स्पेस की वैल्यू ज्यादा ले ली, ठीक है ना। ज्यादा लेने के बाद हमने इस फाइल को फिर से सेव किया, फाइल को सेव करने के बाद फिर से ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो देखो ये लेफ्ट राइट जो स्पेस था वो यहाँ पे हमें अलग से दिखाई दे रहा है कि ये राइट से जो स्पेस था, पहले राइट से बिल्कुल इधर थी, अब राइट से 70 का इसमें स्पेस आ गया, 70 वैल्यू का स्पेस आ गया, ठीक है ना। स्पेसिफाइज इमेजेस साइजेस फॉर डिफरेंट लेआउट, साइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। साइज भी एक एट्रीब्यूट्स होता है इसमें, साइज है ना, साइज भी एट्रीब्यूट्स है। यूज मैप भी है, IS मैप भी है, ठीक। और क्या कहते हैं तुम्हारा क्रॉस ऑरिजिन भी होता है, क्रॉस ऑरिजिन भी होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है SRC ALT अलाइन हाइट एंड विड्थ, केवल यही एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ एट्रीब्यूट्स ही हैं। विड्थ एट्रीब्यूट भी पिक्सल है ना, इनकी वैल्यू भी किस में ली जाती है पिक्सल में, हम इसको भी यूज करते हैं, ओके।
तो आज हमारा जो टॉपिक है इमेज टैग बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब कल जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो HTML फॉर्म्स होगा, HTML फॉर्म्स। ओके।